Welcome back to the Powerhouse Ideas. Till now, you might be aware that what is the theme for today's video, today analysis. In today's analysis, we will be doing Techno-Fundamental analysis of a company named Likhitha Infrastructure. So the purpose of doing this analysis is that there are two things which are key to making this kind of video for you all. First is that the growing demand of gas sector, the gas energy, and second is the better, very good fundamentals of this particular company. This company, being a very small company at this point of time also, which is a micro cap at this point of time, is having very good fundamentals. So we've chosen this company for an analysis, for a detailed analysis. In this video, we will be taking up from the economy, starting from the economy, its demand, its the understanding the demand of gas sector in India. Then we will be moving to the fundamentals and then to the technical analysis. We will be taking you back to 2013 when a report was published by a government organization, government board, and we will be taking you to 2030. So means we will be making a roller coaster ride for you from 2013 to 2030. So kindly stay with us till the end. This is a power pack video, power pack with full of knowledge, which if you are going to get digged into, you will be requiring approximately, I think, one day, though you need a dedicated one day to dig all this knowledge and to study everything. Before starting with this video, I would like to share some wow facts with you. Where India stands at this point of time, India is the 14th largest consumer of gas in the world. And India is the 5th largest importer of gas in the world. Which gas? Liquefied natural gas, which is termed as LNG. India is the 5th largest importer. Now let us start with the analysis of the company. Before analyzing a company, we need to understand that we need to know about the broader concepts first, that what is the growth of this sector in India, how the government takes this sector, and what are the initiatives government is taking in this sector. So एक कंपनी को एनालाइज करने से पहले हम एक ब्रॉडर एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सेक्टर की, क्या इसका फ्यूचर है और क्या इसमें हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में. So for this purpose, for analyzing the growth of this gas sector and for analyzing the requirements of this gas sector, the present infrastructure, in 2013, we are going back 7 years from today. In 2013, 7 to 8 years, in 2013, a board was formed in the name of PNGRB, that is Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, which was formed under the Act of the Parliament. In this board, many renowned companies, to name a few, BPCL, ONGC, GAIL, Reliance, were members. So this was a board to analyze the present requirement and the future requirements of gas sector and the future growth, possible growth in gas sector. So ये रिपोर्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम था विजन 2030 विजन 2030 में इसमें गवर्नमेंट के उस मेंबर्स ने जो बने थे, जो गवर्नमेंट के अंडर बनी थी ये बोर्ड, उसमें उन्होंने इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई, क्या डिमांड रह सकती है इसकी फ्रॉम 2013 टू 2029-30 इन द 17-18 ईयर्स, किस तरह से डिमांड इंक्रीज होगी, किस तरह से सप्लाई इंक्रीज होगी, क्या हमारा प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग दिस गैस सेक्टर, वो सब कुछ डिस्कस हुआ, सब कुछ प्रेजेंट हुआ गवर्नमेंट के सामने. तो धीरे धीरे आई विल टेक यू विद दिस रिपोर्ट. अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी फ्रॉम देयर. सो इस एज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन इन 2013 वाज 11% हमारी एनर्जी कंजम्पशन का सोर्स गैस सेक्टर था at that point of time, and it was predicted that by 2029-30 it will be 20%. So 9% seems a big gap, but what is 9%, what is 11%, what is 20%? Let us understand that कि कितनी हमारी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं. तभी हमें लिखिता के बारे में पता लगेगा कि लिखिता कितना ग्रो कर सकती है. हमें पता लगना चाहिए गवर्नमेंट कितना ग्रो करने की सोच रही है इस सेक्टर को, क्योंकि कंपनी के पास बिजनेस तभी आएगा जब बाहर इकोनॉमी में उसकी नीड होगी, गवर्नमेंट को उसकी नीड होगी. तो लेट अस अंडरस्टैंड. As per that report, the demand for gas will increase. At that point of time, it was predicted at 242 and will increase from 242 MMSCMD. MMSCMD is a measuring unit which is used for measurement of gases, and basically it belongs to this scheme belongs to United States. This measurement unit belongs to United States, mostly used in that country only. So let us keep aside the measuring unit. Let us understand the numericals first. From 242 MMSCMD, the demand will increase as per the government predictions to 746. If we understand broadly that it will increase 3 times the demand will increase. So if the demand will increase 3 times from the present scenario, then we can assume what level can gas sector reach and what is the growth prospect of the particular company which we are going to discuss today. उसके बाद समझ आती है कि इस गैस सेक्टर के अंदर बेसिकली कुछ मेजर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो डिमांड रेज करते हैं. जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ 6 सेक्टर्स हैं जो गैस सेक्टर की
बेसिक डिमांड क्रिएट करते हैं, दैट इज द फर्टिलाइजर सेक्टर, द आयरन ओर, द सिटी गैस, द इंडस्ट्रियल, पेटकैम एक्सेट्रा। तो ये जो ग्राफ आपको आपके सामने दिख रहा है, इस ग्राफ में बेसिकली डिमांड कैसे इंक्रीज होगी इसकी फ्रॉम 2012-13 टू 2029-30 ये डिपिक्ट करता है। मतलब उस टाइम पे अगर हम 242 MMSCMD में थे तो इट विल इंक्रीज टू 746 ग्रेजुअली इन एन अप ट्रेंड। तो डिमांड तो हमारी बढ़ेगी, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिसाइड कर लिया था, एंड वी आर सिटिंग इन 2021, वी आर टॉकिंग अबाउट 2030, तो स्टिल टिल नाउ ऑल्सो दे आर 9-10 ईयर्स टू गो। तो फ्यूचर तो अच्छा लग रहा है गैस सेक्टर का। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कैपेसिटी ऑफ द RNLG टर्मिनल्स, व्हाट आर RNLG टर्मिनल्स? दे आर regasified liquefied natural gas terminals will also increase, which was 17.3 MMTPA and it will increase to 83.83 MMTPA। 17.3 से 83 MMTPA से इसकी हमारी एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी। मतलब टर्मिनल्स की जो गैस डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इट विल इंक्रीज अराउंड 5 टाइम्स। मतलब जो टर्मिनल्स लगेंगे इंडिया के अंदर उनकी कैपेसिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट करने की भी बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी सप्लाई बढ़ाने का भी, तो दीज टर्मिनल्स विल ऑल्सो इंक्रीज। व्हाट इज MMTPA? इट इज ऑल्सो अ मेजरिंग यूनिट व्हिच इज मिलियन मेट्रिक टन पर डे। फर्स्ट गैस डिमांड विल इंक्रीज। अब गैस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए टर्मिनल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। वन वाज गैस डिमांड, सेकंड इज उसका टर्मिनल्स इंक्रीज होने चाहिए आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज एज पर द गवर्नमेंट प्रेडिक्शंस। अब बात आती है अब डिमांड की हमने बात कर ली। डिमांड के बाद बात आती है कि सप्लाई कितनी बढ़ पाएगी। ये टर्मिनल्स तो बढ़ रहे हैं समझ आता है, बट सप्लाई कितनी बढ़ पाएगी? तो गवर्नमेंट प्रेडिक्टेड दैट इट विल इंक्रीज एट अ CAGR of 7.2। माइंड यू, आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो दैट 6.8 CAGR पे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी एंड सप्लाई विल इंक्रीज एट अ CAGR of 7.2। At that point of time, when this report was made, the supply was 400 MMSCMD, which will increase to 474 MMSCMD in 2029-30। तो इसकी जो हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो हमारी 700 समथिंग थी एंड जो सप्लाई है वो 474 समथिंग रह जाएगी। तो देयर इज अ बिग डिस्पैरिटी, बिग डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गैस। तो वो गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? एक नया इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर सर्टन इंपोर्ट्स ऑल्सो। इंपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक नई पाइपलाइन सेट की थी। पाइपलाइन सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पाइपलाइन का नाम था, मतलब अभी भी वो इट्स अंडर ऑपरेशन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज प्रेडिक्टेड कि वो 2021 तक रेडी हो जाएगी, बट 2021 में अगर हम उसका करंट स्टेटस देखें तो इट इज़ नॉट रेडी, बट इट एक्सपेक्टेड दैट इस ईयर में वो स्टार्ट हो जाएगी। उस पाइपलाइन का नाम है टापी, जिसकी हम फुल फॉर्म कहते हैं द टर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। तो ये इंटर कंट्री पाइपलाइन है जो इन 3 कंट्रीज से निकल के हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो इससे हम 30 MMSCMD फ्रॉम दिस ईयर वी विल बी स्टार्टिंग इंपोर्टिंग। तो गवर्नमेंट हर एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव देख रही है हमारी इंपोर्ट्स बढ़ाने का, हमारी कंजम्पशन सप्लाई बढ़ाने का, सो दैट वी कैन कैटर टू द इंक्रीजिंग डिमांड। तो अभी तक पॉजिटिव दिख रहा है हमें गैस सेक्टर के लिए। हम आगे चलते हैं एंड लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर। इन 2013 गवर्नमेंट सेड दैट दिस इंपोर्ट pipeline will be made, which is named as TAPI, and at this point of time also it is not completed and it is under construction, and for which इसका जो contract है वो किसी foreign company के पास है which is completing it, and the name of the foreign company is Global Pipe Company। तो ये चार्ट है आपके सामने जो कि प्रिडिक्ट करता है कि हमारी सप्लाई किस तरह बढ़ेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 147 MMSCMD इट विल इंक्रीज टू 474 इन 2030। तो डिमांड सप्लाई समझ ली हमने। ये जो नेक्स्ट चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा है, दिस इज अ चार्ट बिटवीन द कंपैरिजन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। जो ऊपर वाली लाइन है वो डिमांड की लाइन है एंड जो नीचे वाली लाइन है वो सप्लाई की लाइन है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द डिमांड एंड सप्लाई के अंदर हमेशा एक गैप बना रहेगा। सप्लाई हमेशा कम रही है हमारी पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर रही है कि ये कम ही रहेगी हमारी डिमांड से। तो अभी तक तो हमने समझा कि हमारी डिमांड कैसी रहेगी, सप्लाई कैसी रहेगी, उसकी प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी, वेयर वी वर एंड वेयर वी विल बी, हमने अभी तक ये समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितना था, प्रेजेंट में कितना है एंड फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट रिपोर्ट इन 2013 we had an infrastructure of 13,000 kilometers of pipeline at that point of time, and it was anticipated, which was capable of supplying 321 MMSCMD of gas, and it was predicted that it will be increased to 721 MMSCMD in next 5-6 years, but we have not reached that stage। अभी हम नहीं कर पाए उतना, but still
keeping our hopes high, as per the statement given by our Honorable Prime Minister in January 2021, as per the Prime Minister, sir, it has been informed that at present we are having a 15,000 kilometer infrastructure of pipelines in India currently, and by 5-6 years, next 5-6 years, it will be increased by 16,000, not to 16,000, it will be increased by 16,000, that is almost doubled. And the ultimate target as per that report also, which was issued in 2030, it was also 32,000 kilometer only. So the Prime Minister's target is from next 5-6 years, but as per that report, the ultimate target and the ultimate timelines are 2030. So by 2030, we'll be increasing the pipeline infrastructure to double, more than double, so that we can imagine that how the gas business will evolve in India, how the gas business will develop in India, what is the future of these companies who are laying gas pipelines in India, उनका क्या future रहने वाला है, कितना future उनका bright है, we can have a broad understanding. अब गैस लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, वी विल बी रीचिंग फ्रॉम 15,000 टू 31,000, कीपिंग होप्स हाई कि हम 32,000 किलोमीटर तक हम पहुंच जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस का. बट व्हाट अबाउट द स्टेशंस किस तरह बढ़ेंगे? तो फॉर दिस द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट from 900 compressed natural gas stations since 2014, we have increased our stations by 1,500 plus. Means as on date, there are 2,400 CNG stations in India, and the goal is to have 10,000 CNG stations in India. We started from 900 in 2014, and till now we have increased 1,500 और ये हो गए हमारे 2,400, and the goal is to increase it to 10,000 CNG stations. Means from today onwards, the more than 7,000 stations will be increased. अब जब ये CNG स्टेशंस बढ़ेंगे, तो जब CNG स्टेशन बढ़ेंगे तो इन पाइपलाइंस को ले डाउन कौन करेगा? कौन सी कंपनी के पास इसका बेनिफिट जा सकता है? उनमें से एक कंपनी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है अपना, गवर्नमेंट इज प्रिडिक्टिंग टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए उसकी सपोर्ट कौन करेगा? तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द सोल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट विल फेस व्हेन इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. लिखिता के पास मेजर बिजनेस आ सकता है, नो डाउट अदर पीयर्स भी हैं उसके, अदर कॉम्पिटिटर्स भी हैं उसके, बट लिखिता बीइंग बेस्ट इन द बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल ग्रैब द मोस्ट ऑफ द बिजनेस which will be given to this company with the infrastructure development in India. Now, Prime Minister sir also added that in 2014, 2.5 million piped natural gas connections were there. In 2014, 2.5 million natural gas connections were there, and today those have increased to 7.2 million connections. So this is also a huge jump, more than around approximately 3 times jump in it. कि कनेक्शंस भी हमारे बढ़ गए हैं. सो एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव. वी विल बी इंक्रीजिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम 15,000 kilometers presently to 16,000. Then we will be increasing our CNG stations from 2,400 CNG stations presently to 10,000 CNG stations. Then the connections will also increase, which are at present 2.5 million, and it will increase to 7.2 million. So everything seems to be good for this sector in the future. So what we understand broadly is that government is very positive taking this gas sector, its development, and the development is going at a very strong pace. तो जो कंपनीज इस सेक्टर में हैं, चाहे वो गैस कंपनीज हैं, चाहे वो पाइपलाइन लेइंग कंपनीज हैं, इट्स अ बिग बूस्ट फॉर दीज कंपनीज दैट द बिजनेस ऑफ दीज कंपनीज कैन ग्रो मैनी फोल्ड इन द कमिंग ईयर्स. एंड वो कंपनियां जो बेटर फंडामेंटल्स के साथ आज की डेट में मार्केट में है, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा. Now, why the government want that this should be a shift from the existing energy sources like coal and all, and why they want to shift to the natural gas sources? उसके पीछे reason क्या है? Why government is so positive about it? Government understand that consumption of natural gas will be more eco-friendly as compared to the consumption of another sources of energy such as coal. It will emit less of carbon dioxide, less of nitrogen oxide, which are very harmful for the environment. So this is a win-win situation for the government as well, that if they develop this sector at a pace which has been predicted, then this is a win-win situation for everyone, for the government and for the gas companies as well. Now, before proceeding further, we need to understand the basic difference between LPG and natural gas. LPG is a part of natural gas. Natural gas is something, a gas which is found underground, and LPG is extracted from natural gas and stored in a liquid form, which is being used in every household nowadays, in urban sectors specifically. So we are planning to shift from LPG to piped natural gas, which will also be a source of continued source of energy. Like अभी cylinders वगैरह खत्म होते हैं, तो we need to buy a new cylinder and we need to wait for the new cylinder, and sometimes काम रुकता है. But with a piped natural gas facility, काम नहीं रुकेगा. We will be having uninterrupted services. It will be eco-friendly. It will be good for the environment. So government is pushing this sector in a very fast manner, and if the growth continues, it will be very positive for the companies which are prevailing in this sector.
Now we have understood about the broad economy, broad demand and supply of this gas sector, and what government is doing on the initiatives. What are the initiatives taken by the government? Now let us understand something about the company. इस company के अंदर ऐसा क्या है? So we will be going step by step. First step will be the fundamental analysis, the qualitative analysis of this company, where we'll be studying about the company's management, the company's balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, and the promoter share. So before going to all the details, let me tell you that this company is Likhitha Infrastructure is in two segments. One is it is in the business of laying and construction of pipelines all over the India and also cross country pipelines. It is also in the sector of overhauling and maintenance. इसमें ये आपको रिपेयर, इसमें उनकी सारी प्रोसेसेस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड सब कुछ करके देती है बड़ी बड़ी CGD कंपनीज के लिए. अब व्हाट इज CGD? CDG is City Gas Distribution. Some of the examples of CGD companies Adani Gas, HPCL, GAIL, IGL. So ये कंपनी के दो बेसिक सेगमेंट्स में काम है. वन इज लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस ऑल ओवर इंडिया एंड क्रॉस कंट्री ऑल्सो. सेकेंड इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. ये रिपेयर एंड सारी फैसिलिटीज देती है दूसरी कंपनीज को, बेसिकली लाइक CGD कंपनीज, जिसका मैंने आपको नाम बताया, गेल, अदानी वगैरह सब कुछ. So this company is working with major PSUs and major government companies. So this is first positive fact. You can keep a diary with you so that you can note the positive and negatives about this company. I'll be sharing both with you. तो आप इस डायरी में लिखते जाइए उसको साथ साथ ताकि आपको समझ आ रहे. This company was established in 1998 and till now it is having a vast experience of 20 plus years. इस कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत सारी स्टेट्स में एस्टैब्लिश हैं. टू नेम अ फ्यू: कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा एक्सेट्रा. तो ये कंपनी की जो रीच है ये ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह पे है. बहुत जगह पे हमें इस कंपनी की पाइपलाइंस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है. एंड टू ऐड टू दिस, वन मोर वाउ फैक्ट अबाउट दिस कंपनी इज दैट दिस कंपनी इज द फर्स्ट एवर कंपनी टू ले एन इंटर कंट्री पाइपलाइन बिटवीन टू कंट्रीज. ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने एक पाइपलाइन बनाई थी दो कंट्रीज के बीच में, विच वॉज इंडिया एंड नेपाल. उस पाइपलाइन का नाम है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम, आई विल ट्राई टू प्रोनाउंस इट, मोतीहारी एंड अमलेखगंज pipeline. It's a 69 kilometers pipeline which was made between India and Nepal. This was the first company to make it, an intra company pipeline between two countries, and it is between Indian Oil Corporation in India and Nepal Oil Corporation in that country. So this is the brief infrastructure of this. This is a brief understanding of this company. Now let us understand the management. Starting with the management, let's talk about the promoter. The name of the promoter of this company is Gaddipati Srinivasa Rao. He's a technocrat and he is having a vast experience of 3 decades with him in this same field, in the business of laying and developing of these pipelines, operation and maintenance. So from the inception, he has been the promoter and he has been looking after this company in a very detailed manner. He is also a managing director of this company. Next, the chairman of the company. The name of the chairman of the company is Shri Siva Sankara Parameshwara Kurupillai. They are having very difficult name because this company is belonging to Hyderabad. So they are having very difficult names. I'm trying to pronounce, but excuse me if I'm going wrong somewhere. So he is associated with the company since 2019. He is having a vast experience of 40 years in the same field in the oil and natural gas companies, and is also having an experience of laying around 100 kilometers of gas pipelines, carbon steel pipelines, and 3500 kilometers of MDPE pipelines. Now what is MDPE? Is medium density polythene. It's a category of pipeline which is laid in India. तो इनके पास एक vast experience है 1000 कार्बन स्टील पाइपलाइंस ले करने का एंड 3500 MDPE पाइपलाइंस यूज करने का. तो अभी तक ये दो हमारे डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स की बात हुई है. नेक्स्ट इज लिखिता गद्दीपति. ये वो हैं जिनके नाम पे इस कंपनी का नाम है लिखिता. शी इज़ ऑल्सो वेरी एजुकेटेड वुमेन हु इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दिस कंपनी. शी इज़ BTech फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु एंड मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन शिकागो. She has also worked with PwC, PricewaterhouseCoopers, Chicago. So she is obviously a very learned executive director which is working with this company and whose name the company is named. Next is Shri Lakshmi Gaddipati. She is also working with this company since inception and she is having a broad knowledge of the company's administration and all the administration is looked after by her only.
The next non-executive director is Shri Kutumba Rao Gadipati. He is associated with the company since August 1998. So he is having a vast experience with the company. From the very start of the company, he is with the company. He is a Master of Science, Electronics and Control, and he has also worked as a scientist with ISRO. He has also worked with Wipro and then also worked in California. So till now, all the management which are handling the works of this company are quite learned and quite rich with experience. The next independent non-executive director name is Mr. Talpa Sai Venkata Shesh Munnepale. He is working with this company or associated with this company since March 2019. And what is an added feature is that he is a practicing chartered accountant who is also acting as a consultant. Now we understand that when this company is being managed by such learned persons, so we can very well assume that company गलत हाथों में नहीं है, company सही हाथों में है, and अभी हम उसमें fundamentals में उसका असर देखेंगे आगे जाके. To add on, this company is also ISO certified, which is ISO 9001-2015. This ISO is related to allotted to a company when a company is specialized in the field of design, construction of CGD pipelines, cross-country pipelines, customer satisfaction, etc. So this ISO gives an added cushion to the fact that this company is working well and company is being recognized, has been certified by the organization, by the government organization, that this company is good and doing well in the business. So this certificate is a basic mark of excellence that this company has been performing well in its sector. Now let us understand some ongoing projects of this company. What are the ongoing projects? In which states they are now? There are different kind of projects being undertaken by this company, which are CGD pipelines, cross-country pipelines, I have already told you, and then CGD MDPE pipelines, which is medium density polythene pipelines, and operation and maintenance, overall and maintenance, sorry. तो ये इस कंपनी के आज के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड 6-7 मोर क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं इस टाइम पे. नाउ दीज वर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स. Now this company from when it started, it has completed some hundreds of kilometers of pipelines. It has laid some hundreds of kilometers of pipelines in India and also cross country. So this company has a vast experience and is performing very well from the inception in this sector. कंपनी का बिजनेस अभी चल भी रहा है अच्छा एंड इसने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पास में किए भी हैं, जैसे कि और विद सम ऑफ द मेजर कंपनीज सच एज गेल, आईजीएल, अदानी गैस, इंडियन ऑयल, इन कंपनी से इसमें किया है in some of the major states of India like Chandigarh, Karnataka, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, मतलब all over India इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है. Now on your screen you will see a map of India and the green portion is the portion जहाँ पे इस कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कंपनी के चल रहे हैं या ऑलरेडी completed प्रोजेक्ट्स हैं. So what we understand that this company being basically from Hyderabad, Telangana but has roots established in all over India and also out of India. Now this is something which is the company has been doing from the last 20 years और अभी उसके पास करंट प्रोजेक्ट्स हैं. बट कंपनी का फ्यूचर कैसा है ये देखते हैं. कंपनी ने अभी जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक इसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिले हैं फॉर लेइंग ऑफ गैस पाइपलाइन विद फ्रॉम सम ऑफ द रिनाउंड कंपनीज फॉर सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर अदर पाइपलाइंस. कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसकी वैल्यू है 234 करोड़. 234 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं इन द लास्ट क्वार्टर ओनली. तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़ कि कंपनी को अभी भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंपनी अभी भी बैक कर रही है. सो द पास्ट वॉज गुड, द प्रेजेंट इज गुड, विच सिग्निफाइज दैट द फ्यूचर विल ऑल्सो बी गुड फॉर दिस कंपनी. नाउ लेट अस गो टू सम क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ दिस कंपनी. इस कंपनी की क्वालिटेटिव असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं हम. नाउ लेट अस टॉक 1-to-1 and on 1-to-1 parameters. The first is market cap. At present, this company has a market cap of 795 crores only. 795 crore means it is a micro cap company, which is a very small company. And अगर ये company grow करती है जैसे अभी तक करती है, अगर ऐसे grow करती है तो it is a possible multi-bagger. Seeing the fundamentals आगे हम discuss करेंगे. The current CMP, the current market price of this company's share is 403 rupees. Stock PE is 39.1.
I understand that as per the fundamental analysis, a stock with a PE of 0 to 10 is considered to be available at a very low price. Then 10 to 20 is fair price. 20 to 30 is also fairly priced, but above 30 is considered as high price. But that also depends upon the sector in which company is performing. Like this company is performing in the gas sector, so having a PE of 39.9 is also not an expensive company, because the sector will have a boom, because government is already making many initiatives to boom this sector. So 39.9 is the current PE of the company. Then we talk about the return on capital employed. What is return on capital employed? Return on capital employed is कि अगर कंपनी मार्केट में अपना 100 रुपया लगाती है तो उस पर कितनी रिटर्न आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है. कैपिटल इंक्लूड्स बोथ कैपिटल, दैट इज द मनी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इटसेल्फ, बाय द प्रमोटर्स, एंड द लोन टेकन बाय द कंपनी. तो इंटायर कैपिटल पे उसको कितनी रिटर्न आ रही है. अगर 100 रुपये में 80 रुपये इक्विटी का है, हमारा खुद का पैसा है, और 20 रुपये उधार का है, तो 100 रुपये पे कितनी रिटर्न आती है. तो दिस कंपनी अर्न्स अ रिटर्न ऑफ 43%. अगर आज आप 100 रुपये लगाते हो इस कंपनी में, तो अगले साल तक आपके वो 100 रुपये 143 रुपीज़ हो जाने चाहिए. अब ये तो बात हुई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी. ये तो हो गया कि हमारे पैसे पे कितना मिलेगा, टोटल कैपिटल पे तो इतना मिलता है, हमारे पैसे पे कितना मिलेगा. तो दैट इज ऑल्सो 33%. आज के 100 रुपये आने वाले एक साल में आपको 133 रुपये मिलेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रमोटर्स होल्डिंग. प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होती है? प्रमोटर्स होल्डिंग ये होती है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितना शेयर है उस कंपनी का. द मोर द प्रमोटर होल्डिंग इन अ कंपनी, द बेटर द कंपनी. ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी के प्रमोटर्स को उस कंपनी पे फेथ होगा, देन दे विल कीप देयर शेयर्स मैक्सिमम. अगर कंपनी के प्रमोटर्स ग्रेजुअली अपने शेयर्स को डिक्रीज कर रहे हैं या उनकी प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 50% है, तो इट इज़ एडवाइज दैट वी कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपनी एंड गो टू सम बेटर कंपनी, बिकॉज देयर एन नंबर ऑफ कंपनीज विच कैन बी चूजन फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेज. वी नीड नॉट स्टिक टू वन कंपनी. In this company, the promoter holding is 74%. Means 3/4 of the share of the company is with the promoters, and the rest is with the institutional investors and the retail sector. Out of the 74.1 of the promoter holding which the promoters are holding, उन्होंने इस promoter holding के ऊपर उधार नहीं लिया होगा. उनके पास कुछ शेयर्स हैं, उन्होंने कहीं पे गिरवी नहीं रखे हुए. तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने पास खुद के पास 74% शेयर्स रखे हुए हैं टोटल मार्केट कैप के, एंड उसमें भी उसने कोई उधार नहीं लिया हुआ. तो कंपनी इज़ वेरी पॉजिटिव, द कंपनी प्रमोटर्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. अगर हमें पता होगा कि आगे जाके हमारी कंपनी डूबने वाली है, तो हम उस कंपनी के शेयर सारे मार्केट में बेच देंगे, खुद के पास ज़्यादा शेयर नहीं रखेंगे. बट दिस कंपनी इज कॉन्स्टेंटली कीपिंग अ प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 74%. So let's talk about the other fundamentals. Let us dig into the profit and loss account. Then we will shift to the balance sheet. अगर हम देखें तो इस कंपनी की जो टर्नओवर है, इसकी जो टॉप लाइन है, इसका जो मेजर धंधा है कंपनी का, कौन सा धंधा? पाइपलाइंस लगाने का एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने का पाइपलाइंस का. उसका जो धंधा है उससे टर्नओवर इसकी 15 करोड़ 2009 के अंदर 15 करोड़ थी, विच हैज़ इंक्रीज टू 161 करोड़. मोर देन 10 टाइम्स इसकी टर्नओवर इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों के अंदर. दिस कंपनी इज इंक्रीजिंग इट सेल्स एट अ ग्रेजुअल पेस. एक अप ट्रेंड के अंदर इसकी सेल्स बढ़ हुई हैं. तो अगर कोई कंपनी अपनी सेल्स, अपने धंधे को हर साल बढ़ा रही है ग्रेजुअली, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को भी हर साल वो ग्रेजुअली बढ़ा देगी. आप कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिसकी टर्नओवर, जिसकी सेल्स साल भर साल या तो बढ़ नहीं रही हैं या कम हो रही हैं. बिकॉज अगर आप अपने उस दोस्त को कभी पैसा नहीं देंगे जो हमेशा नुकसान ही खा रहा है, आप हमेशा उस दोस्त को पैसा देंगे जो हमेशा प्रॉफिट में है, जो अपना अच्छा धंधा कमा रहा है. अब ये तो रही सेल की बात. क्या इस सेल से कंपनी प्रॉफिट कमा भी पाती है कि नहीं कमा पाती है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ऑपरेशनल प्रॉफिट, इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जो इसके धंधे से प्रॉफिट होता है उसको, दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ इन 2009 टू 30 करोड़. तो मोर देन 30 टाइम्स उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट हो गया है. 2009 के अंदर जब कंपनी 1 करोड़ कमाती थी, आज कंपनी 30 करोड़ कमाती है अपने धंधे से. तो दिस कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. और अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 7% से 19% हो गया है. तो मोर देन डबल हो गया है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. अब अगर एक कंपनी ग्रेजुअली अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही है, अपना धीरे धीरे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता आ रहा है, तो अगर आप आज की डेट में पैसे लगाते हैं तो आने वाले 10 सालों में सोचना कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आज की डेट में इतनी थी तो आने वाले 10 सालों में कितनी हो जाएगी. नो लेट अस टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस कंपनी इज द अदर इनकम.
कंपनी धंधे से तो अच्छा कमा रही है, जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है उससे अच्छा कमा रही है, बट क्या कंपनी अदर इनकम से कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी मेजर धंधे से कम कमा रही है और अदर इनकम से ज़्यादा कमा रही है? अगर कंपनी अदर इनकम से ज़्यादा कमाती है तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज कंपनी जिस पर्पज़ के लिए इंकॉर्पोरेट हुई है, अगर वो उस धंधे से इतना नहीं कमा पा रही है एंड अदर सोर्स से ज़्यादा कमा रही है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव साइन कि कंपनी अपना मेन बिजनेस नहीं कर पा रही है. बट इन दिस केस, ऑन दिस केस ऑफ लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ अ गुड news that company is earning only 1 crore out of other income against a total operating profit of 30 crores. 30 करोड़ टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका, उसके अगेंस्ट कंपनी सिर्फ 1 करोड़ कमा रही है. तो दैट इज अ नॉमिनल फिगर. इतना हर किसी के पास होता है. किसी ने स्क्रैप जनरेट कर दिया तो उसको बेच दिया, कभी कुछ स्लज जनरेट होगा तो उसको बेच दिया, तो ये नॉर्मल है, इतना तो एडजस्टेबल होता है. बट दिस शुड नॉट बी मोर. अदर इनकम कम से कम होनी चाहिए कंपनी की एंड मेन सोर्स से इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए कंपनी की. आई गेस टिल नाउ यू आर फॉलोइंग मी. उसके बाद बात आती है कि ये सब कुछ तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें करने होते हैं, जो डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस होते हैं. अब उन खर्चों के करने के बाद क्या ये कंपनी लॉस में तो नहीं है? आइए समझते हैं. इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द अदर एक्सपेंसेस वाज 1 करोड़ इन 2009 विच हैज़ ऑल्सो इंक्रीज टू 27 करोड़. तो 27 टाइम्स इसका नेट प्रॉफिट हो गया फ्रॉम 1 करोड़ टू 27 करोड़. नाउ लेट अस डिग फर्दर इनटू इट ना. अगर हम इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो पिछले 10 सालों में इसकी सेल्स ग्रोथ 29% से हुई है, 29% से. एंड इसकी जो 5 सालों की सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड ग्रोथ, दैट इज बाय 39%. पिछले 3 सालों में 15% से ग्रो कर रही है. तो दिस कंपनी हैज़ बीन इंक्रीजिंग द सेल्स एट अ ग्रेजुअल पेस. 25%, 39% से इस कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाती जा रही है. अगर हम इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसका प्रॉफिट 36% से इंक्रीज़ हुआ है. पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट 60% से इंक्रीज़ हुआ है. एंड पिछले 3 सालों में इसका प्रॉफिट 37%, 37% से इंक्रीज़ हुआ है. अब अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि हमारा पैसा जो कंपनी में लगाया है उस पर कंपनी की रिटर्न कैसी रही है, उसकी ग्रोथ रेट कैसी रही है, तो पिछले 10 सालों में 31% से इंक्रीज़ हुई है इसकी इक्विटी. उसके बाद अगले 5 सालों में 33% से एंड 3 सालों में 35% से. तो इनकी ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. कंपनी अब ऐसी कंपनी जो अपनी सेल्स को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, ऐसी कंपनी जो अपने प्रॉफिट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, और ऐसी कंपनी जो अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, हम उसमें पैसा क्यों नहीं लगाना चाहेंगे. बट इस कंपनी की एक और चीज़ भी है कि दिस कंपनी हैज़ नॉट बीन पेइंग आउट डिविडेंड. इस कंपनी का प्रॉफिट नो डाउट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2009 जो हम कंपेयर कर रहे हैं आज की डेट में, बट कंपनी ने आज तक डिविडेंड नहीं पे आउट किया है. Now this can be positive and negative both, because one thing positive is that the company is retaining all the profits and employing in the business. क्योंकि कंपनी एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी है इस टाइम पे, तो कंपनी इसमें अपने बिजनेस में लगा रही है. दूसरा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो एक पर्सपेक्टिव है, आई टेक इट एज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कि कंपनी जो कमा रही है अपने बिजनेस में लगा रही है फॉर द ग्रोथ पर्पसेस. नाउ लेट अस डाइव इनटू द बैलेंस शीट. अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट. प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही चीज़ें देखने वाली होती हैं. डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज बाय गेटिंग इनटू एवरी फिगर के सैलरीज कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी है, नॉट नीडेड. हमें छोटे छोटे पैरामीटर्स देखने होते हैं, जो कुछ 10-15 पैरामीटर्स विच वी नीड टू सी. अगर वो कंपनी के बढ़िया हैं तो दे आर वेरी गुड टू गो. नाउ लेट अस डाइव इनटू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. व्हाट द बैलेंस शीट शोज अस. नाउ द बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इज द वन थिंग विच वी नीड टू सी. इस कंपनी के पास 15 करोड़ की शेयर कैपिटल है. व्हाट डज शेयर कैपिटल मीन्स? शेयर कैपिटल मीन्स कि कंपनी ने अपना पैसा कितना लगा रखा है, प्रमोटर्स ने अपना पैसा इसमें कितना लगा रखा है, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनका अपना पैसा इसमें कितना लग रखा है. तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 15 करोड़ पर स्टार्टिंग है. अगर शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है तो दैट इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी को पैसा अपने शेयर होल्डर से उठाना पड़ रहा है, कंपनी अपने बिजनेस से जनरेट नहीं कर रही है. तो अभी ये छोटी कंपनी है, 15 करोड़ पे स्टैटिक रहे या डिक्रीज हो दैट इज़ पॉजिटिव. बट अगर इंक्रीज हो रहा है शेयर कैपिटल दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि कंपनी अपने धंधे से नहीं कमा पा रही है, कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा उठाना पड़ रहा है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए. तो इस कंपनी का स्टैटिक है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन. प्लीज़ कीप नोटिंग इन योर डायरी. उसके बाद रिजर्व्स. व्हाट आर रिजर्व्स? कंपनी के रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास, जो कंपनी ने काम करना शुरू किया था, तो कंपनी के रिजर्व्स, उनके पास खुद का पैसा कितना जनरेट हुआ. तो अगर हम बात करें तो 2003 के अंदर इस कंपनी के पास खुद का पैसा था 2 करोड़ का,
और आज की डेट में इस कंपनी के पास खुद के 62 करोड़ हैं। अगर हम 62 करोड़ को आइसोलेशन में देखें तो दैट विल नॉट सॉल्व एनी पर्पस। हमें अपने पैसे के अगेंस्ट ये भी देखना चाहिए कि हमने लोगों का पैसा कितना देना है, हमारे पास उधार कितना है। तो अगर हम उधार की बात करें तो एक कंपनी का उधार 62 करोड़ जो हमारे खुद के हैं उसके अगेंस्ट सिर्फ 2 करोड़ का है। मतलब आज की डेट में अगर हमारे उधार वाले लोग, हमारे जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ है, वो उठ के आ भी जाते हैं कि हमें पैसा वापस करो, तो हमें कोई दिक्कत की ज़रूरत, कंपनी को कोई दिक्कत में नहीं आएगी, बिकॉज कंपनी के पास खुद के 62 करोड़ हैं, उसमें से 2 करोड़ एक नॉमिनल अमाउंट है कंपनी के लिए, दैट कैन बी पेड ऑफ। तो कंपनी की कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, कंपनी की कंटिन्यूटी डाउटफुल नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी तक बहुत बढ़िया हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया कि 2 करोड़ लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं हमारे पास, कि लॉन्ग टर्म में हमने जो देने हैं। कुछ होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हमारी, जो हमने आने वाले 1 साल में वापस करनी होती हैं, जैसे हम करंट लाइबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं या अदर लाइबिलिटीज़ एज पर दी बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो ये अदर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? अदर लाइबिलिटीज़ वो हैं जो हमने आने वाले 1 साल में लोगों को वापस करनी है। तो आज की डेट में कंपनी है 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ लोगों का वापस करना है विद इन 1 ईयर। बट ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी के पास इसी तरह से टोटल अदर एसेट्स हैं। अदर एसेट्स जो कंपनी के पास हैं वो 84 करोड़ के हैं। मगर इट मीन्स कि अगर आज की डेट में वो लोग जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, कंपनी से पैसा लेना है, अगर वो पैसा लेने आ जाते हैं तो देयर इज़ अ सफिशिएंट लिक्विडिटी विद द कंपनी कि कंपनी उनको पे ऑफ कर सके। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट। नाउ लेट्स गेट अनदर डाइव इनटू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद भी आज की डेट में भी फ्री कैश फ्लोज जनरेट कर रही है। व्हाट डू मीन बाय फ्री कैश फ्लोज? फ्री कैश फ्लोज वो हैं कि कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट कर पा रही है, कंपनी को उधार उठाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को क्या कहते हैं किसी से भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस से, अपने धंधे से फ्री कैश फ्लो, कैश जनरेट कर पा रही है। मतलब कंपनी को बाहर से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी खुद का पैसा जनरेट करेगी एंड कंपनी के डेवलपमेंट में लगा देगी। इतनी छोटी कंपनी जो 700 करोड़ की कंपनी है, 700 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, वो आज की डेट में अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। कंपनी आज की डेट में फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अगर हम बात करें फिगर्स की तो मार्च 2020 में इट जनरेटेड अ फ्री कैश फ्लो ऑफ 19 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब 19 करोड़ कंपनी अपने खुद के बिजनेस में लगा सकती है। नाउ लेट्स गो टू अ ट्रेंड इन सर्टन रेशियोज। ROCE हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो मीन्स कि एक डेटर्स से हमें पैसा कितने दिनों में आ जाता है। तो इन 2009 84 डेज लगते थे एक डेटर से पैसा लेने में, विच हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 84 टू 37 डेज। 84 टू 37 डेज मीन्स लेस देन 50% हमने टाइम रिड्यूस कर लिया। मतलब पैसा जिससे हमें 80 दिन में आता था, अब हमें 40 दिन में पैसा वापस हमारे पास आ जाता है हमारा। अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर्स होल्डिंग जो हमने शुरू में बात की थी, अब इसका कुछ शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास भी है, वो है 0.09%। मीन्स द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन द कंपनी, आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, एंड द बैलेंस 25.80% इज विद द रिटेल इन्वेस्टर्स। सो ब्रेकअप क्या हुआ? 74.11% इज विद द प्रमोटर्स, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, देन 0.09% इज विद FIIs, एंड द बैलेंस 25.80 इज विद द promoters. So this was all about the fundamental analysis of the company, the qualitative analysis of the company. So let us now sum up before moving to our technical charts. Let us now sum up कि इस कंपनी के लिए हमने क्या क्या अभी तक हमने इस वीडियो में समझा। One, that the government is positive. The government is trying to increase the infrastructure. By 2030, it will be almost double. And this company, with having so good fundamentals, as having a very good scope, and this company is also bagging new orders, which a recent order which company got was 234 crores. Now let us move to the technical charts for understanding better. But before moving to our technical charts, let us understand when the government is increasing this infrastructure, government infrastructure को डबल करने की सोच रही है, government CNG stations को डबल करने की सोच रही है, pipelines बिछाने की सोच रही है, then who will get all this business? Obviously the companies who are good in this field will get this business, जिसमें एक नाम लिखिता का भी आता है. So a company with such good fundamentals, if working is in this sector and government भी positive और sector के लिए, तो why not we should be positive for the growth of the sector. This company can be a possible multi-bagger and can be a big company in coming years. So ये तो हो गया कंपनी का fundamental analysis, कंपनी का qualitative analysis. Now let's go to the chart. Now this is the chart of the company which we are talking about, Likhitha Infrastructure. अब लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट देखा अगर हम देखें तो दिस कंपनी वॉज रिसेंटली लिस्टेड इन अक्टूबर 2020 एंड सिंस गेटिंग लिस्टेड दिस कंपनी हैज़ बीन इन एन अप ट्रेंड विच हैज़ बीन फॉर्मिंग अ हायर हाइज एंड हायर लोज.
सो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से एक अप ट्रेंड के अंदर है, ऊपर ही जाती दिख रही है। तो ऑन चार्ट्स दिस कंपनी सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। ओपन हुई थी अराउंड 140 लेवल्स पे एंड राइट नाउ इट्स हैज़ रीच टू 400 लेवल्स। तो मोर देन 3 टाइम्स ऑलमोस्ट होने वाली ये कंपनी हो जाएगी कुछ आने वाले दिनों में, अगर इस तरह ही चलती रही तो। इफ़ यू ऑल्सो लुक एट दी वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम मीन्स कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एट अ हाई लेवल। वॉल्यूम स्पर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। अगर आप देखें तो हर जगह पे वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। मीन्स स्मार्ट मनी मीन्स द बिग इन्वेस्टर्स आर बाइंग इन सच बिग वॉल्यूम, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इतनी वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते हैं। दीज आर द बिग मनी विच आर बाइंग दिस स्टॉक। तो ये कंपनी ऑन चार्ट्स ऑल्सो इट्स ऑन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ रहा है। Now, as we have completed with the complete analysis of Likhitha Infrastructure, which included the economy analysis, the demand and supply of the gas sector, the government initiative, the fundamental analysis, and the technical analysis, we want to add that this video is not any kind of recommendation or an investment advice from the Powerhouse Ideas. We are just here for helping you people to increase your knowledge. So this is all which we have for you today. We'll be coming up with more such videos by Powerhouse Ideas, powered by Karan. Our knowledge, your learning. Kindly share this video with your friends and family so that we can together make a bigger tomorrow. Thank you. Signing off. Take care.